Hello there and welcome to the new session in which we are going to start with the example part of the indices. So अभी तक के जो अपन ने देखा था it was very simple rather than talking about what indices is and laws of indices. We all know very well now what indices is, why we study indices, laws of indices क्या है. It is very necessary that you should remember all these 7 laws of indices. All these. अगर आपको ये याद है then the chapter is done, else the chapter is not done for you. But ये बोल भी नहीं सकता कि chapter is not done for you क्योंकि this is very basic maths जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो. So it is not something like जिसमें आपको इसमें पढ़ने की जरूरत है. It's just you need the practice. Okay? और practice भी ये एक ऐसे टाइप का टॉपिक है जिसमें आपको मैं कितने भी क्वेश्चंस दे दूँ कम ही गिरेगा. So I have picked few. So we have 11 questions for us to solve today and I hope कि ये तुम्हारे लिए इतना इनफ होगा. इससे रिलेटेड ही एग्जांपल्स, ऐसा नहीं कंपलसरी कि यही टाइप के एग्जांपल्स आएंगे एग्जाम में, बट आउट ऑफ द सिलेबस नहीं होगा कुछ भी, एज इन ये रूल्स जितने आपको पढ़े हैं यहाँ पे, और आई विल गिव यू अ बेसिक आइडिया टुडे हाउ टू टैकल द क्वेश्चंस. आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए. पहली बात तो इट्स नॉट लाइक कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन करा के दूं, इट्स लाइक कि मैं आपको प्रिपेयर करूं हाउ यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ, हाउ यू शुड टैकल. आपकी मेंटालिटी कैसी होनी चाहिए सॉल्व करने के, वो आज हम यहाँ पे सीखेंगे. बाकी तो इट इज वेरी सिंपल फॉर यू गाइज टू बाकी it is very simple for you guys to remember the laws and to use them appropriately. It's just about tackling the questions and how you will keep your mentality. आपको कैसे solve करना है ये आज अपन यहाँ पे सीखेंगे. So we are going to start with very basic concepts, very basic चीज जो कि एग्जाम में पूछी भी नहीं जा सकती. अगर पूछा तो भी ठीक है, नहीं भी पूछा, but we are going to train ourselves from basic. Okay, so let's just begin with the example part. जिसमें very first example is write the following product in exponential form. They are asking us to write the product in exponential form. Whenever I say exponential form, it means that to the power में कुछ आना चाहिए. Not always 2, but x to the power something. It represents exponential type of function. Exponential type of function it is. So what I have to do is I have to convert all this product into exponential form. Sir, ये already exponential में. Then also I will have to reduce it in the shortest possible manner. So पहला example देखते हैं. The example is this indicates multiplication. Star है वो star. So like while typing it is not possible to write 2.2. It is, but it is not appropriate. You will not able to understand it. समझने में दिक्कत जाती है. So I use star over here. It means multiplication. Okay. So 2 times what it is 2 into 2 into 2 into 2, and after this there is another bracket in which there is 2 into 2 into 2. Now what I have to do is मेरे को कन्वर्ट करना है ये ब्रैकेट्स को एक्सपोनेंशियल में. सो पहली बात ए क्या होगा, पहले ब्रैकेट में हाउ मेनी टूज आर देयर विच आर बीइंग मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर. हाउ मेनी टूज 1 2 3 4. सो ये तो बहुत ही सिंपल है. एग्जैक्टली. एंड इन सेकेंड ब्रैकेट वी कैन सी हाउ मेनी टूज आर बीइंग मल्टीप्लाइड 1 2 and 3. So like ये कितना हो जाएगा 2 to the power 3. And now I have the property that a to the power m into a to the power n base same multiplication power का करो addition. So in such case my m is 4 and my n is 3. So in such case 2 to the power 4 plus 3 will give me 7. So this is my answer in the form of exponential. I have converted this entire product in the exponential format. Let's just move on to the next question. Yes, so this is done. X into x to the power 3 into, now this is multiplication symbol, you know which one, this one over here, multiplication symbol it is. So there is a product of x to the power 3 into x to the power 4. So यहाँ पे it is the formula similar to this except now there is some extra element a to the power p. So what it will be a to the power m plus n plus p. It doesn't matter how many a's are there, कितने a है,
इट मैटर्स कि बेस सेम है तो कितने भी बेसेस रहे उन सबको कॉमन करके जितनों की भी बेस की पावर होगी उन सबको ऐड कर देना है, सबको ऐड कर देना है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल कीप द बेस 1 and I am going to add 1 plus 3 plus 4, 1 plus 3 plus 4, which will give me 8, which will give me 8. So x to the power 8 is my answer. Good enough. Now this C and D will be homework for you guys. It's very simple. इसमें कुछ इतना है नहीं rocket science, so I am going to solve only 3. C. Okay. See the C question. 7 minus 7 square, it is different. Okay, I'll tell you what difference is. minus 7 cube. देखो मैंने पहले भी बहुत बार बोला है minus 7 whole square, इसका मतलब हो गया minus 7 into minus 7. दो minus 7 का प्रोडक्ट इज नथिंग बट minus 7 whole square. लेकिन यहां पे वो क्या बोल रहे हैं minus 7 का स्क्वायर. They are not equal to each other. They are not equal to each other. See, इसका आंसर आता है 49 और इसका आंसर आता है minus 49. So they are not equal to each other. They are not equal to each other. Okay, they are not equal to each other. पर अब हम करेंगे क्या सर? बेस तो सेम, बेस सेम है ना बेटा, बेस सेम है. एंड यू विल सी दैट हाउ. देखो ये 7, ठीक है, ये -7 स्क्वायर है ना, तो आई कैन राइट इट एज -1 into 7 square. Pretty good. It's possible for me to write. Okay, yes. And again -7 cube है तो -1 into 7 cube. Now what I will do is मैं सेम बेस वाले टर्म्स को साथ में लिखता हूं, सेम बेस वाले टर्म्स को साथ में लिखता हूं. 7 स्क्वायर 7 क्यूब. Simple enough. It is possible for me to write in such a way. And another bracket में I will write same base वाले -1. Now I can write both these in exponential form. The base over here, पहले ब्रैकेट का बेस मैं सेम कर देता हूं और पावर की क्या हो जाएगी फिर एडिशन. 1 plus 2 is 3, 3 plus 3 is 6 and -1 है तो मैं बेस सेम कर लेता हूं होल स्क्वायर. हाँ, बट यहां पे गलती ये मत करना, इट्स जस्ट -1 होल स्क्वायर. इट इज -1 होल स्क्वायर. It is -1 whole square. And what do we know about -1 whole square? It's +1. It is +1. So finally my answer is 7 to the power 6. 7 to the power 6. It's my exponential form. There might be possibility कि option में they will give you these kind of options also. So you have to be very careful while solving in exam, while taking the answer. So you have to be careful bit. आपको देखना है कि what they are asking from you. Whether it is in this format or it is in this format, the answer. Okay, answer I am talking about. ठीक है. So ये था अपने write the product in exponential form. Very simple. Basic से start कर रहे हैं अपन इसलिए. Now the second question is write the product in the simple form so that each base, it's not baser. You must correct it also. It's not baser, it's base. Each base is used only once and no exponent is raised to an exponent. Now what does this mean? ये तो समझ में आ गया. राइट द प्रोडक्ट इन सिंपल फॉर्म. प्रोडक्ट को सिंपल फॉर्म में लिखना है इस हिसाब से कि हर एक बेस एक ही बार यूज हो रहा है. ईच बेस इज यूज्ड ओनली वंस एंड नो एक्सपोनेंट. ये अलग बात बोल रहे हो लोग. नो एक्सपोनेंट रेज टू एन एक्सपोनेंट. नो एक्सपोनेंट रेज टू एन एक्सपोनेंट का मतलब होता है, ओफो, गिव मी 1 second प्लीज, थोड़ा कोमा में चले जाता है. यस, नो एक्सपोनेंट इज रेज टू एन एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट रेज टू एक्सपोनेंट का मतलब हो गया x टू द पावर 2 टू द पावर 2. सो ये जो चीज दिख रही है आपको यहां पे 2 to the power 2 is known as exponent. Or in another terms एक और चीज x to the power 10 whole to the power 2. ये एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट is also known as exponents. So we do not have to write it in this format or in this format. We have to write
इन द फॉर्म सच दैट कि वेरिएबल जो ईच बेस है वो एक ही बार आए और एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट में ना रहे. मतलब इफ देयर इज समथिंग इन दिस वे, सो आई हैव टू रिड्यूस इट इन द फॉर्म ऑफ x टू द पावर 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4. और इफ समथिंग इज इन दिस फॉर्म, then I'll have to change it in the form of x to the power 20 using the law. Which law it is? This law. This law it is. Very well. So I have to reduce such kind of things in such kind of things. और इस हिसाब से कि there should be one base only, not two. अब 2 नहीं मतलब कैसे, देखो सबसे पहला क्वेश्चन उससे क्लियर हो जाएगा. ए what they are asking is 3, what they are asking is what they have given is 3 into x to the power 4 y to the power 3 whole to the power 10. ओके, ये एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट आ गया, ये क्या आ गया, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट आ गया. एंड इनटू 5 x to the power 2 y to the power 5 whole to the power 3. सो एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट है. और यहां पे देखो x एक वेरिएबल है और x यहां पे भी एक वेरिएबल है, y एक यहां पे वेरिएबल है, y यहां पे भी एक वेरिएबल. सो देयर आर टोटल 4 वेरिएबल्स. और उन्होंने क्या बोला है कि देयर शुड नॉट बी मोर देन 1 बेस, देयर शुड नॉट बी मोर देन 1 बेस. सो यहां पे x के 2 बेस है और y के 2 बेस है. वी आर गोइंग टू क्लब इट, वी आर गोइंग टू क्लब इट इन 1 बेस, वी आर गोइंग टू क्लब इट इन 1 बेस. सो वी विल जस्ट रीराइट द क्वेश्चन अगेन ताकि अपने को बार बार वहां पे देखने की जरूरत ना पड़े. इंटू 5x स्क्वायर y टू द पावर 5 होल क्यूब. ओके, सबसे पहली बात तो क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज द प्रॉपर्टी ओवर हियर, वी आर गोइंग टू यूज द लॉ ओवर हियर. विच लॉ इट इज, लॉ नंबर 3, एंड इट स्टेट्स दैट x a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn. सो उस हिसाब से ये वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, और साथ ही साथ में 3 और 5 को क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं. तो मैं 3 और 5 को पहले यहां लिख लेता हूं. नाउ मेरा पहला ब्रैकेट जिसको मैं स्क्वायर में लिख रहा हूं, x टू द पावर 4 y टू द पावर 3 whole to the power 10. It doesn't matter how many bases are there. इसमें अगर b to the power भी रहता, let's just I'll rewrite it, आपको इसमें दिक्कत ना जाए इसलिए, a to the power m b to the power n whole to the power c, then you will have a to the power mc into b to the power nc into b to the power nc. So ये वो प्रॉपर्टी है जो अपने को यहाँ पे यूज करना है, and it is going to be x to the power 40 y to the power 30. And now this another bracket, the parenthesis one, circle bracket जिसको मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, x to the power 6 y to the power 15. Getting my point? Very simple, बहुत simple stuff है ये. Now what I'm going to do is I'm going to club the common bases. Okay, and for that what I'm going to do is this, see ये 3 into 5 15 हो गया. स्क्वायर ब्रैकेट में x वाली टर्म, पैरेंथेसिस में x to the power 6 वाली टर्म, स्क्वायर ब्रैकेट में y वाली टर्म एंड पैरेंथेसिस में y वाली टर्म. So finally my answer is 15x to the power 46 y to the power 45. So now you can see the question में जो रिक्वायरमेंट है वो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि राइट द प्रोडक्ट इन सिंपल फॉर्म. देखो पहले कितना लेंथी फॉर्मेट में था, यू कैन सी हाउ मच लेंथी द फॉर्मेट वॉज, एंड नाउ यू कैन सी द आंसर हाउ मच शॉर्ट इट इज. ओके, कैसे हुआ ये, जस्ट बाय considering one base only and that too no exponents and that too no exponents, उसके वजह से मेरे को ये हासिल हो पाया. So these are rather very simple questions जिससे अपना लॉ अच्छे से प्रिपेयर होता है. जो अपन ने लॉस पढ़े हैं we get hold on it by these kind of questions. Next, okay, C is homework for you guys. ये तो बहुत सिंपल है, there is no such need for me to do this. Okay, B is what I'm going to do. Where is it? Okay, x y z, another bracket is x square y square z to the power 4 whole to the power b. Okay, अब वेरिएबल दे दिया पावर, इट डजेंट मैटर पावर क्या है, वी आर गोइंग टू एनीवे क्लब इट z to the power c. Now you can see, अभी मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो पहला ब्रैकेट एज इट इज लिख देता हूं. क्यों, क्योंकि फर्स्ट आई हैव टू एलिमिनेट एक्सपोनेंट, एलिमिनेट द एक्सपोनेंट. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगेन आई विल यूज द सेम लॉ विच आई एम गोइंग टू यूज, विच आई हैव यूज्ड इन प्रीवियस एग्जांपल. मैं उसी को वापस रिपीट करूंगा, एंड दैट लॉ इज x to the power 2b
y to the power 2b, is it y to the power 2b? Yes it is. Z to the power 4b, and over here x to the power 3c, y to the power 4c and z to the power 5c. Now मेरा टास्क अब ये है कि देयर इज नो एक्सपोनेंट्स एक्सपोनेंट, जो मेरे को क्वेश्चन में पूछा गया था. दूसरा टास्क ये है कि देयर शुड बी ओनली वन बेस ऑफ वन काइंड. यहां पे एक काइंड के कितने अलग अलग बेसेस है? एक बेस, दो बेस, तीन बेस. सिमिलरली फॉर y एंड सिमिलरली फॉर z. सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लब ऑल दोस. सो x, ये बेस, इस पावर इसका 1 है, ये 1 प्लस 2b प्लस 3c इंटू y, यहां पे उसका पावर 1 है प्लस इधर पावर 2b है और इधर पावर प्लस 4c है, इंटू z, इधर इसका पावर 1 है प्लस इधर इसका पावर 4b है एंड इधर इसका पावर इज 5c. एंड नाउ दिस इज माय फाइनल आंसर. Can I further club it? No. Why? क्योंकि these are different variables और इनकी पावर में भी चीजें अलग है. So I cannot anywhere reduce it except until this, up till this. Okay. So this is the final answer that they were asking from me. Very simple enough. Very nice. Okay. इसमें कुछ इतनी दिक्कत वाली बात नहीं थी. I am just using the laws what we have learned earlier. So second question is done. Third question, write without using an exponent, which means that there should not be any exponent present in your solution. So मैं इसे यहीं पे solve करूंगा third को. Now we all know what x to the power 0 is. X to the power 0 is 1 minus 1 divided by 1 plus 1. So 3 into 1 is 3 minus 1 is 2, by 2 you will get 1. So this one is such a number in which there is no exponent present. कोई भी exponent नहीं है. अगर वो बोलते exponent के फॉर्म में लिखो, then you will have to write it in the form of 1 to the power 1, or more specifically x to the power 0. More specifically x to the power 0, because x to the power 0 is 1. So in the form of exponent the answer is x to the power 0, but without the exponent your answer is just 1. Your answer is just 1. B, there is no such problem over here to solve. 1, 5, anything to the power 0 is 1, that we are very well aware of. 4 to the power minus 1. Now we have the property a to the power minus n is nothing but 1 upon a to the power n. So over here 4 to the power minus 1 will be 1 upon 4 plus, okay, plus it is it plus? Okay, plus 8 to the power 1 by 3. Now 1 by 3 as in क्या हो गया? 1 by 3 का मतलब क्या हो गया? सर यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? द वेरी लास्ट प्रॉपर्टी दैट वी हैव स्टडीड इज ये वाला a to the power p by q, in which q is our 3 and p is our 1. In which q is our 3, p is our 1. So ये क्या हो जाएगा? 1 by 4 plus I have multiplied these two, cube root of 8. And what is the cube root of 8? सर वो नहीं पता हमको. Now you know how to calculate. See कैसे? 8 can be written in the form of 2 into 4. ये cube root है. Do not forget it. And 4 can be written in the form of 2 into 2. Now you can see very well 1 by 4 plus cube root of how many times 2 is repeated and how many times the 2 is been multiplied with each other? 1, 2 and 3. So it is nothing but 2 to the power 3. Now अब मैं क्या करता हूं देखो, अब मैं वापस इसको a to the power p by q के फॉर्मेट में लिखूंगा. अब मैं यहां से यहां पे जा रहा हूं. पहले मैंने क्या किया था? पहले मैंने यहां से यहां पे गया था. यहां पे देखो ये 8 से ये यहां पे आया समझ में. और अब मैं क्या कर रहा हूं? आई एम गोइंग रिवर्स. रिवर्स क्यों जा रहा हूं देखो, सॉरी नॉट जस्ट दिस, 3 by 3. मेरा p क्या हो गया? 3 और q क्या है मेरा? अपॉन 3, 1 by 3. So this gets cancelled. So finally my answer is 1 by 4 plus 2 and it is cross multiplying it. So 1 plus 8 upon 4, 9 by 4. And this is my final answer.
अभी ये इतना डिटेल में किया है मैंने, एग्जाम में आपको याद रखना है वेरी बेसिक क्यूब रूट्स। 8 का क्यूब रूट इज 2, 16 का स्क्वायर रूट इज 4 इन सच अ वे, 25 का स्क्वायर रूट इज 5, क्यूब रूट 5 का क्यूब कितना होता है 125, सो इट्स क्यूब रूट इज 5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो बेसिक छोटे छोटे नंबर्स के आपको क्यूब रूट एंड क्यूब यू हैव टू रिमेंबर, ओके। और आपको याद नहीं आता है तो दिस इज द प्रोसीजर इन विच यू हैव टू गो। सी लॉ ऑफ इंडाइसिस के थ्रू ही ये आंसर्स बने हैं, बिना लॉ ऑफ इंडाइसिस के आपको ये सब चीजें नहीं मिलती थी। यू वर नॉट एबल टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ 8 अगर पुराने लोग ये आपके लिए करके नहीं रखते तो। इट्स बिकॉज ऑफ देम आपको यहाँ पे ये आंसर मिला है। सो यू हैव टू आइदर रिमेंबर इट और यू कैन कैलकुलेट इट द वे आई हैव डन फॉर यू। इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं होती है एग्जाम में। यू डोंट हैव टू फॉलो माई मेथड, आई एम जस्ट गिविंग दिस मेथड ऑल्सो सो दैट यू हैव समथिंग विथ यू। जिनको याद नहीं रह रहा है क्यूब रूट, दे कैन यूज दिस काइंड ऑफ मेथड। और जिनको याद रहता है, इट्स वेरी इजी फॉर देम टू कैलकुलेट विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड, आई वुड रादर से विद इन अ सेकेंड, okay. So yes, the third question is done now. Now comes the fourth question. Find the value of, okay, now I'll rewrite this over here ताकि वो आपको अच्छे से दिखे यहाँ पे। if you might not be able to see it, मैं उसको अच्छे से लिख लेता हूँ। let me check where it is. Okay, I found it. So which question it is? Fourth question. Very well. Okay, I'll write it over here. So we'll solve it over here now. Fourth question, and it states that we need to find the value of 243 whole to the power n upon 5 into 3 to the power 2n plus 1 whole divided by 9 to the power n into 3 to the power n minus 1. अब देखो यहां पे मैं हाइलाइटर यूज कर लेता हूं, ठीक है। पिंक इज फॉर दिस वन, येलो इज फॉर दिस वन, ग्रीन इज फॉर दिस होल डिनोमिनेटर, ओके। पहले तो पिंक हाइलाइटेड को आप देखेंगे, पिंक हाइलाइटर को, वहां पे यू विल एबल टू सी दैट a टू द पावर p बाई क्यू है। एंड अभी मैंने तुमको बोला कि कुछ इसके क्यूब रूट्स याद रख लो, क्यूब रूट्स, रूट साइज, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, यहां तक कि आप लोग याद रख लेंगे तो इट इज बेटर फॉर अस, ओके। बट अगर नहीं भी होता है तो मैं आपको मेथड तो बताऊंगा, पर मैं अभी थोड़ा डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। मैं अभी क्या बता रहा हूं, थोड़ा डायरेक्ट बता रहा हूं आपको कि व्हाट इज द फिफ्थ रूट ऑफ 243। उसमें एक शॉर्टकट ट्रिक भी होती है और वो भी है। फिलहाल शॉर्टकट ट्रिक नहीं देख रहे अपन, देखो हियर माय आंसर विल बी क्यूएथ रूट ऑफ a टू द पावर p, है ना। एंड क्यूएथ रूट क्यू, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में होता है। कौन डिनोमिनेटर में होता है? क्यू डिनोमिनेटर में होता है। नाउ हियर सी पिंक हाइलाइटेड वाला पार्ट, 5 इज माई डिनोमिनेटर, तो मेरे को क्या लेना है, फिफ्थ रूट लेना है 243 का। सो फिफ्थ रूट ऑफ 243, वन सेकेंड, अब हाउ फिफ्थ रूट ऑफ 243 मुझे लेना है। सो हाउ विल आई डू इट, सी अभी दो टेक्निक है यहाँ पे। एक तो शॉर्टकट टेक्निक ये है कि नाउ यू कैन सी, क्योंकि ये इंडाइसेस है, आपको इसके पर्टिकुलर आंसर निकालना है, आपको एक पर्टिकुलर इसका आंसर निकालना है, तो आपको सबका बेस क्या करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा। आई एम टेलिंग द शॉर्टकट, यहाँ पे शॉर्टकट की बात चल रही है अभी। एग्जाम में क्या करेंगे आप, ठीक है, फोकस करिए। अगर आपको एक बेस चाहिए तो 243 को कौन से बेस में ला सकते हैं आप, सी। येलो में हाईलाइटेड में बेस क्या है, 3। ग्रीन में हाईलाइटेड में पहला एक बेस क्या है, 3। and this 9 to the power n can be converted into 3 to the power 2. Everything is going to be get converted into 3 का बेस, ताकि अपने को सॉल्व करने में आसानी जाए। सो इसका मतलब 243 का फिफ्थ रूट क्या होगा, 3। 243 का फिफ्थ रूट क्या होगा, 3। वेरी वेल, सो ये हो गया 3 to the power n, नॉट m, into 3 to the power 2n plus 1 होल डिवाइडेड बाय 9 टू द पावर n। ग्रीन हाईलाइटेड में देखेंगे 9 टू द पावर n मींस 3 टू द पावर 2n। वाई, क्योंकि 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 3 स्क्वायर टू द पावर n प्रॉपर्टी लग जाएगी वहां पे, इनटू 3 टू द पावर n माइनस 1। इज इट सॉल्वेबल? यस, डायरेक्टली सॉल्वेबल। यहां पे प्रॉपर्टी लग जाएगी a प्लस बी। कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। साथ ही साथ में दूसरा प्रॉपर्टी क्या लगेगा, a टू द पावर m, a टू द पावर n
a to the power m minus n। कहां पे? ये 1 लगेगा यहां पे और ये 2 लगेगा यहां पे, ठीक है, बाद में। पहले अब देखो 3 to the power 3n plus 1 divided by 3 to the power 3n minus 1। सिंपल इनफ। बेस सेम है क्या? यस। नाउ कैन आई यूज द लॉ नंबर 2? व्हाट लॉ नंबर 2 इज 3 to the power n plus 1 minus 3 to the power n minus 1। ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है, else it will get wrong if you will not give the bracket। So bracket is very important for us। 3 to the power 3n plus 1 minus 3n plus 1, minus minus क्या हो जाएगा? प्लस। So you can see it's been get cancelled। 3 to the power 1 plus 1 is 2 and your answer is 9। So my final answer is 9। I will highlight with it blue। ये क्या हुआ? शॉर्टकट। कैसे? I have observed that क्योंकि ये इंडाइसेस का प्रॉब्लम है, तो फॉर सॉल्विंग इट मेरे को सबका बेस क्या लगेगा? सेम। एंड आई कैन ऑब्जर्व दैट येलो वाले हाईलाइटेड वाले टर्म का भी बेस 3 है, ग्रीन वाले हाईलाइटेड में भी सबका बेस 3 है। सो इट इज नेसेसरी, वेरी वेरी नेसेसरी दैट इसका भी बेस क्या होना चाहिए? 3। और आप ये चेक कर लीजिएगा 243 का फिफ्थ रूट इज नथिंग बट 3। 243 का फिफ्थ रूट इज नथिंग बट 3। अभी आपको कैलकुलेटर पे का ट्रिक आपको पता होना चाहिए कि how you can calculate the fifth root of any number। So fifth root के लिए give me a minute ताकि मैं यहां पे आपके स्क्रीन के ऊपर वो स्टेप्स लिख के दे दूं। ओके, give me a minute please। Okay, so here I have written the steps to calculate root on calculator। देखो steps to calculate root on, ये बात दिख रहा है ना? रूट ऑन कैलकुलेटर। टेक द नंबर। देखो अभी मेरे पास में कैलकुलेटर है, आप भी आपके हाथ में कैलकुलेटर ले लीजिए। वी आर कैलकुलेटिंग द फिफ्थ रूट ऑफ 243। ठीक है, वी आर कैलकुलेटिंग बाय दिस स्टेप्स फिफ्थ रूट ऑफ 243। हाउ यू विल डू? पहली बात तो उन्होंने क्या बोला है, पहले तो आप एसी दबा देना 3-4 बार। द वेरी दिस बटन, ओके, एसी 3-4 बार दबा देंगे ताकि आपकी पूरी मेमोरी जो है उसकी वो क्लियर हो जाएगी। नाउ व्हाट यू हैव गाइस टू डू इज, पहली बात तो पहला स्टेप इज टेक द नंबर, प्रेस द नंबर ऑन योर कैलकुलेटर जिसका आपको रूट लेना है। 243 इज अवर नंबर, 243, दैट इज व्हाट आई हैव प्रेस्ड नाउ। 243। आई होप कि आपको ये विजिबल होगा, नहीं भी होगा तो आप मेरी बात सुन के करिए। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप इज व्हाट, प्रेस रूट 12 टाइम्स। बेटा जो आपके यहां पे ये सिंबल होगा रूट वाला, सीई के ऊपर, अगर ये वाला कैलकुलेटर ये यूजिंग जो भी है, बट सी रूट वाला सिंबल होगा, रूट वाला, you have to press it 12 times। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, आपकी स्क्रीन पे भी नंबर आया होगा 1.001341979009। कुछ नहीं करना है, बस 12 बार रूट दबा देना है। थर्ड स्टेप इज व्हाट, -1 फ्रॉम दैट नंबर। -1 फ्रॉम दैट नंबर एज इन सब्ट्रैक्ट करना है 1 को, आपके जो ये स्क्रीन पे नंबर आता है उससे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सो प्रेस द माइनस बटन एंड 1 बटन। ओके, कर लिया ये। अब क्या करना है, इक्वल टू नहीं दबाना है, अब क्या करना है, डिवाइड दैट नंबर बाय द डिजायर्ड रूट। कौन सा रूट लेना है आपको? फिफ्थ रूट लेना है, तो आप बटन दबाएंगे डिवीजन का। क्या किया आपने, पहले तो नंबर लिया 243, 12 बार रूट दबाया, एक भी बार इक्वल टू नहीं दबाया, फिर माइनस दबाया, फिर 1 दबाया, अब दबाएंगे डिवाइड, फिर आपकी डिवाइड दबाते से आपको नंबर आएगा 0.001341979009। अब दबा दूंगा मैं 5, अब मैं दबा दूंगा 5। नाउ माय फिफ्थ स्टेप इज, अब मेरा फिफ्थ स्टेप देखो क्या है, एड 1 टू दैट नंबर। जैसे माइनस किया था वैसे इसमें ऐड करना है। ठीक है, अब मैं प्लस का बटन दबाता हूं, तो आपका जैसे प्लस का बटन दबाएंगे तो आपको मिलेगा 0.000268399581। आई एम गोइंग टू एड 1। अब मैंने फिर से कुछ नहीं किया, बस 1 दबा के रखा। नाउ माई लास्ट स्टेप इज प्रेस इनटू इक्वल टू, दैट इज मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू सिंबल को आपको क्या करना है, प्रेस करना है। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू प्रेस, 12 टाइम्स। इनटू इक्वल टू साइमल्टेनियसली, ऐसा नहीं 6 बार इनटू दबा दो, 6 बार इक्वल टू दबा दो। इनटू इक्वल टू 1, इनटू इक्वल टू 2, ऐसा कितने बार करना है, 12 बार। तो देखो इनटू इक्वल टू 1 हो गया, इनटू इक्वल टू 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सो आप आपकी जैसी 12 बार हो जाएंगे, आप आपके कैलकुलेटर पे देखते हो, यू विल गेट द आंसर 3.00171768781। अपने को ये काम का है, बाकी ये सब हटा दो डेसिमल से। 3.00। सो अपना आंसर आ गया 3। अपना आंसर आ गया 3। सो ये वो मेथड है जिसके हिसाब से आप रूट कैलकुलेट करेंगे। फिफ्थ रूट ऑन योर कैलकुलेटर। सिर्फ क्यूब रूट निकालना रहा तो 243 का क्यूब रूट निकालना है। अगेन एसी दबा दो, पूरा एसी दबा दो। क्या करेंगे, नंबर ले लेंगे 243, देन क्या करेंगे 12 बार रूट प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर -1, फिर डिवाइड। अब डिवाइड कैसे करेंगे 5 से? नहीं, अब डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि आई नीड क्यूब रूट मतलब 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। फिर क्या करेंगे +1, फिर क्या करेंगे इंटू इक्वल टू, ये हो गया पहला, इंटू इक्वल टू 2, इंटू इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो अभी जो आपका आंसर आया है वो, ओफ मेरे से कुछ तो गलती से कुछ तो दब गया, मेरा 15.60 है नहीं, जबकि कुछ और आना चाहिए। क्यूब रूट है ना 243। ओके, रीस्टार्टिंग। 12 बार रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइडेड बाय 3 +1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यस, माई आंसर इज 6.245361822212। ये आंसर आना चाहिए आपका क्यूब रूट ऑफ 243। क्यूब रूट ऑफ 243 आपका आना चाहिए 6 पॉइंट, अगर आप क्यूब रूट ले रहे हो तो 6.245 ये आपका आना चाहिए। आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। एंड सर व्हाट इफ आई नीड टू टेक द स्क्वायर रूट? तो बेटा स्क्वायर रूट के लिए तो आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। एसी दबा दो, 243 दबाओ और जस्ट प्रेस 1 टाइम, एक बार दबाते से 15.588 आ जाएगा। दैट विल बी योर स्क्वायर रूट, 2 रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट। सर 11th रूट दबाना है, तो ये पूरी प्रोसीजर बस यहां पे आपको डिवाइड बाय 11 करना है, ठीक है, आया समझ में? सो दीज आर द स्टेप्स। आप इसको लिख लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए। मैं तो बोलता हूं 5th रूट निकालो करीबन 8-10 नंबर का, 10th रूट निकालो करीबन 15-20 नंबर का। ऐसे प्रैक्टिस करो तो अब आपको फिर वो याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना? ओके, पक्का? चलो, सो दिस वाज द मेथड। अगर आपको शॉर्टकट हर बार काम करेगा क्या, गारंटी नहीं है, पर ये कैलकुलेटर वाला हर बार काम करेगा। सो किसी बच्चों को ऐसा भी होता है कि उनको समझ में नहीं आता, तो ये उनके लिए भी है और उनके लिए भी है जो ये शॉर्टकट पे ऑब्जर्वेशन रखते हैं, ओके। तो इस मेथड से आपका ये आंसर आ जाएगा एंड द फाइनल आंसर फॉर अवर इज 9। सो ये मैंने आपको रूट भी निकालना सिखा दिया है कैलकुलेटर पे, सो इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू। जब भी कभी भी कोई नंबर का, जैसे कि ये नंबर का मैं अपॉन 8 ले रहा हूं, तो मैं क्या ले रहा हूं 8th रूट ऑफ 2। आई एम टेकिंग द 8th रूट ऑफ 2, ओके। सो that's it for today's session. We will stop here. In the next session we will cover up the remaining part, okay. So remaining there are how many? 6 questions are there. We will cover up in the next session. That's it from me. Thank you.